It is a simple storage system provided by AWS to store multiple Simple objects like storage storage, system simple storage service. 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 करेक्ट. तो दिस इज द लॉन्ग फॉर्म. ये लॉन्ग फॉर्म है उसका. ओके, दिस इज S3 लॉन्ग फॉर्म. We can store multiple objects like images and text Correct. files and like that in S3 bucket. We can create a bucket and we can store multiple objects like that in it. सिंपल मीन्स आप डेटा सिंपल स्टोर कर सकते हो. ओके, देन स्टोरेज. व्हाट इज मीन बाय स्टोरेज? स्टोरेज मीन्स व्हाट इज मीन बाय स्टोरेज? स्टोरेज में क्या कर सकते हो आप? स्टोर सम डेटा. करेक्ट. यहाँ क्या कर सकते हैं हम? स्टोर सम डेटा. करेक्ट. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे हम डेटा स्टोर करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? Google Drive. गूगल हार्ड ड्राइव. ड्राइव, SSD। करेक्ट, गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव इस केस में हम क्या बोलते हैं? गूगल ड्राइव. ओके, एग्जांपल ऑफ गूगल ड्राइव. तो गूगल ड्राइव किसने क्रिएट किया है? क्रिएटेड बाय गूगल कंपनी. किसने क्रिएट किया है? गूगल कंपनी. यूज कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं. ओके, वैसे ही जो ये S3 है, S3 किसने क्रिएट किया है? किसने क्रिएट किया है S3? AWS. करेक्ट, क्रिएटेड बाय AWS. ओके, created by AWS. अभी what is the difference between here is created by Google company? Correct. This is created by Google company. What is the difference between this one? This one? What is the difference between? डिफरेंस क्या है? गूगल ड्राइव किसने क्रिएट किया? गूगल कंपनी में. S3 क्रिएट किसने किया? क्रिएटेड बाय AWS. करेक्ट, इतना ही डिफरेंस. ओके, स्टोरेज है तो स्टोरेज हम कर सकते हैं. ओके, so how many type of storage? How many type of storage? Block You storage have and object and state. which storage? Block level storage and object level storage. Block storage and object Object storage. storage. There are two types. So ये क्या है? कॉमन टाइप्स है. ओके, तो देखो, ब्लॉक स्टोरेज हम किसको बोल सकते हैं? ब्लॉक स्टोरेज Where our OS is installed. ब्लॉक स्टोरेज किसको बोलेंगे हम? करेक्ट, OS. ओके, जहां पर हम OS स्टोर करते हैं. कहां पर करते हैं OS स्टोर? हम हमारे इसमें EBS वॉल्यूम. ओके, EBS वॉल्यूम में क्या करते हैं? हम स्टोर करते हैं OS. ओके, एक ही डिस्क मिलती है हमें. उसमें क्या करते हैं? हम EBS वॉल्यूम अटैच करते हैं और बाकी का जो भी पोर्शन है एज ए ऑब्जेक्ट स्टोरेज करके यूज करते हैं. करेक्ट. बट S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज. S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज. ये ध्यान में रखना. S3 इज एन ऑब्जेक्ट स्टोरेज. S3 is an object storage. Okay, in S3 we keep objects some like as a Google Drive. Okay, जैसे हम Google Drive में कुछ रख सकते हैं वैसे क्या रखेंगे यहाँ पर? हम जो भी मीन्स like as a documents, pictures, everything. Okay, we can store here. So block storage means where we install OS that is the place we called as a block storage. Okay, object storage means where we keep objects. That place we called object storage. Okay,
So example of block storage, EBS volume, the volume core attached to the our instance जो हमें 8 GB 10 GB मिलता है. Okay. S3 is a object storage. It is a place where we keep objects whenever store only objects in MP3 songs, MP4 pictures, documents, notepad, Excel sheet, PPT, PDF, etc. Okay. S3 where we keep objects is not a suitable to install package in system. कभी देखा है क्या आपने कि डेटाबेस S3 पर इंस्टॉल किया है या कौन सी ओएस S3 पर इंस्टॉल किए नहीं. ओके. कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया नहीं. ओके. डेटाबेस एंड ऑल known just a normal storage same like as a Google Drive. Okay. Now S3 what we do, कैसे कर सकते हैं S3. So we create one bucket. हम क्या करेंगे, एक bucket create करेंगे. Okay. This is our bucket. Simple एक example. This is our bucket. Okay. So this is our bucket. We create one bucket. Okay. The outermost part we called as a bucket. Okay. जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसका, इसको क्या बोलेंगे हम, बकेट बोलेंगे. ओके. दिस इज द बकेट. इसको क्या बोलने वाले हम, बकेट बोलने वाले. करेक्ट. दिस इज द बकेट. और इनसाइड द बकेट वी कीप ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट मींस वी कीप एज ए okay, we keep folder, again subfolder, everything we keep here. Okay. Suppose folder रखे, files रखे. Okay. So we keep here inside the folder. कौन से files है, कौन से folders है, everything we keep here. Okay. तो यहाँ पर हमने रख दिए. Okay. फोल्डर में से सब फोल्डर है. ओके. दिस इज द सब फोल्डर. और उसके अंदर हमने एक फाइल रख दी. जैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके अंदर फाइल रखते हैं. ओके. सो इनसाइड द बकेट वी कीप ऑब्जेक्ट्स. ओके. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलने वाले, इनसाइड जो भी है उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलने वाले हम, ऑब्जेक्ट. ओके. दिस इज द ऑब्जेक्ट. First create folder, then keep files. Okay. Google Drive or other any place. In folder inside we may create subfolder. Inside we make file. Okay. But in S3 outer part is bucket. Inside we called as a objects. Okay. Those file we called, ये जो फाइल्स और फोल्डर दिख रहे हैं इनको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. ओके. could mp3 files, could be images files, pdf files, notepad files, all these things we called as a object. उसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे. करेक्ट. all each and every item that we stored in object, mp3 mp4 notepad pdf excel image objects, so we can create folder also inside the folder. Okay. so ये फोल्डर है हमारा, उसके इनसाइड हमने फोल्डर क्रिएट किया. ओके. सो डायरेक्टली वी कीप द ऑब्जेक्ट इन बकेट. डायरेक्टली हम ये फाइल रख सकते हैं. सपोज दिस फाइल ये डायरेक्टली भी रख सकते हैं, या फिर फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके अंदर फोल्डर सब फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके इनसाइड हम फाइल रख सकते हैं. ओके. वॉट एवर यू वांट, वी कैन क्रिएट folder inside keep object also. You can direct keep object inside the bucket. Okay. or create folder inside the bucket and keep objects in the folder. Okay. so these are 3 rules for use. means क्या करना है हमें, देखो 3 rules है इसके. कौन सा है, outer part inside could be objects, could be folder, there could be subfolder, means folder inside the folder objects. Okay. so हमारे कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट आता है बकेट, उसके बाद में आता है फोल्डर, और तीसरा क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स. ओके. रिमेंबर 3 रूल्स फॉर S3 buckets.
3 rules for S3 bucket. Okay, कौन से रूल है? फर्स्ट रूल इज बकेट. ओके, तो फर्स्ट रूल इज बकेट. सेकंड रूल क्या है हमारा? सेकंड रूल इज ऑब्जेक्ट. सेकंड रूल इज ऑब्जेक्ट. ओके, सॉरी, सेकंड रूल कौन सा है हमारा? फोल्डर. और थर्ड रूल इज ऑब्जेक्ट्स. रिमेंबर दिस थ्री things: bucket, folder, objects. Okay, it is the unlimited storage. We can store the data. There is no limit any amount of. Okay, so इसकी कुछ लिमिट है क्या? जैसे हमारी फाइल सिस्टम रहेंगी, अगर से आपने एक फोल्डर बना दिया. ओके, so एक फोल्डर की अगर से जो हार्ड डिस्क है उसकी एक साइज रहेंगी 100 GB या फिर 15 GB, तो आप उतना ही डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं जैसा आपका पेन ड्राइव है. ओके, 2 GB पेन ड्राइव है तो आप 4 GB उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो क्या? यस और नो? नो. व्हाई? बिकॉज उसकी साइज कितनी है? 2 GB. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 GB तक ही हम क्या कर सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं. ओके, बट यहाँ पर है क्या? ऐसी लिमिट नहीं है. S3 की कोई लिमिट नहीं है. ओके, so it is a unlimited storage. We can store data. There is no limit. There is store any amount of data. There is no limits. Okay, so you can store any amount of data, GB, TB, PB, whatever. Okay, GB means gigabyte, terabyte, and petabyte. Okay, so let me show you inside S3 bucket. Okay, so we log in on सर्वर रहेगा या नहीं? फर्स्ट आई टू टर्मिनेट दिस वन. से रहेगा, फ्राइडे से रहेगा. Okay, we need to go to S3 first. So this is S3. Okay, S3 means क्या है? सिंपल
storage service. Okay. Service. S3 is a secure objects. Okay. So here they have provided some. S3 is a secure durability. Please tell me what is the difference between scalable and durability? What is the difference between two words? Their object storage service offers industry leading scalability and data availability. Okay, security and performance. So what is the meaning of durability and scalable, durable and scalable? By scalable, it means it can grow like it can create Correct. multiple replicas, and You by can data scale durability, it means whatever you want. Okay, yes, and by durable means durability, it means data replication in multiple zones. okay, and secure means Encryption, authentication, authorization. my data not be misused. It should not go to the another hand. That is what security. Okay, it is not be misused. Okay, कोई उसको मिसयूज नहीं कर सकता है, कोई उसके दूसरों के हाथ में नहीं जाएगा. ओके, ड्यूरेबिलिटी मीन्स we should not lose our data. That is what durability. Okay, so S3 related आपने जो बताया वो करेक्ट था, बट S3 related थिंग बता रहा हूं मैं. ओके, तो ड्यूरेबिलिटी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि वी शुड नॉट लूज अवर डेटा. दैट इज व्हाट ड्यूरेबिलिटी. हाउ लॉन्ग लॉस मींस वो डिपेंड रहेगा अपने पे. ओके, सो सिक्योरिटी मींस माय डेटा इज नॉट गो टू अदर हैंड, सो दैट इज so that I need security. Okay, durability means my data should not delete. For durability, okay, so S3 secure, your data never be misused. It will not go to the another hand. Okay, and another is highly scalable. Highly scalable means you cannot store, you can store any amount of data. There is no limit. Highly scalable. Okay, then क्या आता है हमारा object storage. What is mean by object storage? So object storage, it is a suitable to store only objects. It is not a block storage. You cannot store operating systems. You cannot install database. You can keep only objects. Okay, S3 is a secure, durability and highly scalable object storage. Okay, S3 is a very easy to use. S3 is a very easy to use. Simple options are there. Easy options, easy to use with a simple web interface. Easy options, user friendly, likes create buckets, create folders. Okay, and upload the objects, delete the objects. So these are user friendly. See, simple web interface to store the retrieve any amount of data. Okay, so you can store any amount of data. We can retrieve any amount of data. Okay, so this storage means not like you can just storing the data. Here you can retrieve the data also from anywhere. Okay, जैसा हमने अभी देखो, जैसा हमने बकेट बनाई. ओके, सो हमने क्या किया, डेटा रख दिया इसमें से. अभी हमें ये डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये डेटा रिट्राइव कर सकते हैं. ओके, तो we will store here data inside this bucket. ओके, ये डेटा स्टोर किया मैंने और मुझे क्या करना है, ये डेटा रिट्राइव करना है. तो आई विल रिट्राइव दैट डेटा. ओके, so it is a very easy how to retrieve. So we will see. Okay, some like of Google Drive. Drive storage you can access anywhere in the world, so you don't need to stock one place. Okay, कि अभी देखो आपका गूगल ड्राइव है, आप पूना में आपने गूगल ड्राइव मीन्स पूना में आपने जीमेल आईडी बनाया तो आप पूना में यूज कर सकते हैं जीमेल आईडी. अगर से पूना के बाहर चले गए तो आप यूजेबल है क्या वो? यस और नो, आप यूज कर सकते हो? Yes. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. same like as a this also S3 also. Okay, I don't need to stock one place.
So S3 also you can access anywhere in the world. Okay. So what is S3? Simple storage service. So S3 there are simple some important points to must know. Okay. So S3 related some parts we need to must know. फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर S3 Okay, so S3 simple storage service. S3 is a secure, durable, and highly scalable objects. S3 is easy to use within a simple web service interface to the store and retrieve any amount of data from anywhere on the web. Okay, तो यहाँ तक हमने देख लिया. So next, S3 is a safe place to store your files. It is a object-based storage. File can be from 0 byte to 5 TB. Okay, so S3 is a safe place to store your files in terms of durability, security, both it is pretty secure. Okay, तो Amazon क्या कर रहा है? Amazon provide the guarantee. कितनी गारंटी प्रोवाइड कर रहा है? Amazon provide the guarantee 99.1245678 okay, 99.9 times 9 वो क्या कर रहा है? ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो ड्यूरेबिलिटी मींस आई टोल्ड यू कि AWS हाई एश्योरेंस प्रोवाइडेड 99.9 टाइम्स 9 और 11 टाइम्स 9 होगा 3 okay, so number that giving so yes, okay, durability you don't need to lose our data. Okay, never lose our data, misuse our data. Okay, so it is a object-based storage. It is a object-based storage. You can store only object not suitable for OS. Correct? Then file can be from 0 byte to 5 byte, 5 TB. Means you can store any amount of data, but each object size that you upload, हम देखो कितना भी इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, बट इसका क्या बोलना है? तो जो भी फाइल्स रहेंगी, जो भी फोल्डर्स रहेगा, वो कितना चाहिए? maximum 5 TB. Okay, like that you can upload any number of objects. There is no limit, but upload objects simultaneously. Okay, so limitation क्या है इसका कि 5 TB तक हमें फाइल नहीं चाहिए. 5 TB के ऊपर कौन सी भी फाइल रही वो स्टोर करने के लिए हमें कितना चाहिए? Before 5 TB. Okay, so each object should not cross 5 TB. Okay, so there is a unlimited storage. Unlimited means I told you like this, you can upload any number of objects. Unlimited, there is no limit, no limit. Okay, each file size not exist 5 TB.
ऑब्जेक्ट आर स्टोरेज इन बकेट, करेक्ट, बकेट में स्टोर होते। S3 बकेट नेम मस्ट बी यूनिक और ग्लोबली, तो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा और ग्लोबली रहेगा। ओके, द बकेट नेम, आउटर बकेट नेम must be unique globally, that is means no two should have same name, okay, in this word। अगर से आपने एक नाम से बकेट क्रिएट कर दी तो कोई भी वही सेम नाम की बकेट कोई क्रिएट नहीं कर सकेगा इन दी वर्ड्स, ओके। लाइक योर ईमेल आईडी should be unique, ओके। सो आपने अगर से आपका ईमेल आईडी बना दिया तो यूनिक है ईमेल आईडी, कोई बना सकता है क्या सेम नेम से? इट शुड बी यूनिक, everyone email id should be unique, so same like bucket name also। so I have created test bucket name in my account, but you are not creating same bucket name as per my bucket name, okay। so but inside bucket name same folder name you can create it, not for folder objects and folder name, okay, understand? For 99.99 availability for the S3 path, S3 platform, okay। so how fast means you can access data to this one? For example, after uploading videos, you don't know whether you observed or not upload video on my Google Drive। so आपने क्या कर दिया कि Google Drive पर एक वीडियो अपलोड कर दिया, ओके। समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू एक्सेस, आपने देखा होगा, आपको उसको एक्सेस करना चाहते हो तो लोडिंग लोडिंग होते रहता है, जब तक वो पूरा लोड नहीं होगा तब तक आपको दिखेगा नहीं वीडियो, करेक्ट। इट टेक्स टू access, okay, it takes to time for access, okay। sometimes you can observe that issue, the video is under process which is beginning the process, please wait for some times। did you observe this kind of error message? anyone? Okay, so what actually happens when you upload any videos on Google Drive, it takes time to process the video, it takes some time to process the videos. Once processing is over, then you can watch that video, that that is the reasons, okay। so uploaded video immediately you cannot watch, take some times, you have to wait for more than half hour, okay। so after that you can watch, that means no immediate availability in Google Drive, correct। सबने इशू फेस किया है, yes or no? Yes, what is sir. mean by availability? Yes, sir. what is mean by availability? Sir, which we can access or 24/7 correct, might be. means should be able to access immediately, okay। no in Google Drive it takes time to process, but that is not a case with S3, okay। suppose I uploaded any data, suppose I have uploaded any data here, okay। so देखो some means I uploaded any data, I can watch immediately here, okay। so see the response immediately। sometimes Google Drive showing issues, Google Drive इसमें issue shows करता है, but S3 is not showing any issue, okay। and then next is very important, S3 lab topics, so replications, okay। in S3 apart from storage there is so many advantage, okay। main purpose of S3 is store only apart from storage, okay। so getting other so many advantage, like you can suppose one example, your cell phone to purpose make a call, आप मोबाइल किसके लिए यूज करते हो? मेक ए कॉल के लिए, ओके, कॉल करने के लिए किसको, that is the main purpose
is to make a call. Apart from making a call, you have many other features like you can take a pictures, play games, watch movie, okay, कैलकुलेटर, टाइम अलार्म, बहुत सारा यूज करते हैं हम. बट हमारा मेन पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करने का. ओके, कम्युनिकेट तो कम करते हैं हम, बट उसको यूज ही ज्यादा करते हैं. करेक्ट? रील्स देखने के लिए, यूट्यूब के लिए. So these are extra features getting in your cell phones. Here also in S3, apart from storage, many other advantage. Okay, so these are advantage. ठीक है, उसके advantage है. Okay, so these are this. Today we learn only theoretical part, but next lecture we will perform lab also for this one. Okay, so replications means manual and automatic. Okay, so what is mean by manual and what is mean by automatic? मैनुअल मीन्स क्या बोल सकते हो आप? So manual needs human touch and automatic which we can directly go with the automations. करेक्ट. तो मैनुअल मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम फोल्डर में कॉपी पेस्ट करते हैं. ओके, कॉपी करते हो और दूसरे फोल्डर में पेस्ट करते हो. सेम लाइक हियर आल्सो. सपोज दिस इज माय S3 बकेट. Suppose this is my S3 bucket. Okay, in one region. कौन से भी रीजन में मेरी S3 bucket है? S3 bucket name unique globally, but you can choose region. वो तो नेम सेम रहेगा, बट आप रीजन चेक कर सकते हो. ओके, सो चूज कर सकते हो वेयर यू आर टेकिंग. एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू क्रिएट वन S3 bucket in Mumbai region. This is one more bucket in Singapore region. Okay, so every times क्या रहेगा? This is the Mumbai locations. Okay, this is the Mumbai locations S3 bucket. This is the Mumbai locations. Okay, and other I have created here. ओके, एक है हमारी मुंबई लोकेशंस और दिस इज सिंगापुर लोकेशंस बकेट. Okay, this Mumbai location, this is Singapore locations. So I would like to create one S3 bucket in Mumbai region. There is one more bucket in Singapore regions. Everyone logging to the same AWS account. Okay, so we are working in same company. So everyone login on AWS accounts. एक क्या है? AWS accounts है. So this is the AWS accounts. Okay.
Okay, this is the AWS accounts. ये क्या है? AWS accounts है. Okay, so we are working in same company. We are using one AWS accounts but with login credentials. Okay, so those working in, some people are working in Mumbai locations, so using Mumbai S3 bucket. Okay, this is S3 bucket. Okay, don't consider 5. Okay, yes, consider करो इसको. Okay, this is one S3 bucket for Mumbai location. जो भी मुंबई लोकेशन में लॉगिन कर रहे हैं वो कौन सी बकेट यूज कर रहे हैं? मुंबई लोकेशन के S3 बकेट की. ओके, और जो सिंगापुर में लॉगिन कर रहे हैं वो सिंगापुर के S3 बकेट के क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. ओके, तो this bucket using P and this is bucket using V. ओके, दो ये है. ओके, तो एक प्रणव है और एक विक्रम है. ओके, सो विक्रम क्या कर रहा है? विक्रम रिक्वेस्टेड टू प्रणव whatever data is in your S3 bucket, जो भी आपकी इसमें डेटा है S3 buckets, so please transfer to this bucket. ओके, सो ये विक्रम क्या बोल रहा है कि तुम्हारे जो S3 bucket में है जो भी डेटा है वो ट्रांसफर करो कहाँ पर? सिंगापुर लोकेशंस के बकेट पे. ओके, सो ही वांट टू सम डेटा. ओके, पवन बकेट, सॉरी प्रणव बकेट टू हिज बकेट. ओके, सो प्रणव कॉपी दैट डेटा. ये क्या करेगा? कॉपी करेगा. यहाँ से कॉपी किया. ओके, सो पवन प्रणव कॉपी दैट डेटा एंड व्हाट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. सो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है. ओके, रेप्लिकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग डेटा और कॉपिंग डेटा. ओके, दैट कुड बी मैन्युअल और ऑटोमेटिक. अभी हम क्या देख रहे हैं? मैन्युअल. ओके, सो whenever wants will copy data or transferring data one bucket to another bucket. Okay, so another bucket could be same region or different region, could be in another account, that could be anywhere you can transfer the data. That is called as the replications. Okay, so ये डेटा क्या कर रहा है? डेटा उठा के कहाँ रख रहा है? यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर रहा है डेटा. जो भी S3 पैकेट में का डेटा है हम क्या कर रहे हैं? मैन्युअली कर रहे हैं. ओके, सो एक ही इसमें एक ही अकाउंट में रहेंगी, डिफरेंट अकाउंट में रहेंगी, डिफरेंट रीजन में रहेगा. ओके, या फिर सेम अकाउंट पे रहेगा और सेम रीजन पे रहेगा. ओके, अंडरस्टैंड? मैन्युअली मीन्स कॉपी डेटा मैन्युअली. देन ऑटोमेटिक मीन्स क्या होगा? तो एज आई पुट द डेटा इन S3 बकेट एंड इमीडिएटली कॉपी. अगर से मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने S3 बकेट में डेटा पुट किया. ओके, S3 बकेट में मैंने डेटा डाला. यहाँ पर मैंने डेटा डाला. ओके, सो दिस इज माय डेटा एंड क्या होगा? सेम टाइम पर इमीडिएटली कॉपी टू दी अनदर बकेट्स. ओके, इमीडिएटली क्या होगा? कॉपी होगा डेटा हियर. ओके, इमीडिएटली डेटा क्या हो जाएगा? कॉपीड हियर. जैसे ही यहाँ पर डेटा डाला मैंने, ओके, जैसे ही यहाँ पर डेटा आ गया तो वैसे ही वो क्या हो जाएगा? कॉपी आ जाएगा यहाँ पे. ओके, उसकी कॉपी क्या रहेंगी यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा. यहाँ से डेटा आ रहा है और यहाँ से डेटा क्या हो रहा है? रेप्लिकेट हो रहा है टू अनदर लोकेशन बकेट. करेक्ट? मैन्युअली मीन्स आई कॉपीड दैट डेटा. मैं कॉपी करूंगा उस डेटा को और यहाँ पर डाल दूंगा. ओके, ऑटोमेटिक मीन जैसा यहाँ पर डेटा मैं डाल रहा हूँ, जैसा अपलोड कर रहा हूँ, वैसे क्या होगा? इधर रेप्लिकेट होगा. ओके, सो I copied manually but data from one bucket to another bucket. Okay, so that is the manual. Understand? Manual or automatic? So we will see in practical also. Okay, tire storage means you can देखो, you know Indian Railway, the different components. क्या क्या है different components? पर AC जनरल. Correct. Again, कौन सा रहता है? फर्स्ट AC रहता है. करेक्ट. देन कौन सा रहता है? उसके बाद में सेकंड AC. उसके बाद में कौन सा रहता है? थर्ड AC. ओके, उसके बाद में कौन सा रहता है?
स्लीपर। के बाद में क्या रहता है? जनरल। करेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। ये क्या रहेगा? स्लीपर। और लास्ट क्या रहेगा? जनरल। करेक्ट। किस किसने से ये किया है, ट्रैवलिंग किया है? किस किसने किया है? फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल। तो मैंने जनरल से किया है, स्लीपर से भी किया है, थर्ड एसी से किया है, टू एसी से किया है, वन एसी तक नहीं गया मैं भी। ओके, तो तीनों भी मुझे ये इतना पता है। वन एसी सिर्फ ज्यादा महंगी रहती है इसलिए नहीं करते उसको। ओके, सो दिस इज इंडियन रेलवे सिस्टम। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंपार्टमेंट्स? एनीवन, एनी हैव आइडिया? कौन कौन से So डिफरेंस है some इसमें? facilities, Facilities. Service. services, facilities. सबसे पहला कौन सा रहेगा इसके लिए हम पैसे पे करते हैं? लग्जरीज। ओके, कॉस्टिंग। अच्छा। कॉस्टिंग तो किस पर डिपेंड रहती है? लग्जरी। लग्जरी, देन Comfort. सेकंड Comfort. प्राइस। करेक्ट। थर्ड वन क्या रहेगा? अफोर्डेबिलिटी, रिक्वायरमेंट। ओके, सो अभी देखो, लग्जरीज रहेंगी, लग्जरी जितना रहेगा उतनी क्या रहेंगी? कॉस्ट हाई रहेंगी। करेक्ट। और जितनी प्राइस रहेंगी उस टाइप से हमें क्या मिलेगा? उसके उसके टाइप से क्या मिलेंगे? उसकी प्राइस मिलेगी। ओके, इसमें डिफरेंस आ सकता है। स्पीड तो सबके लिए सेम है। करेक्ट। ऐसा है कि जनरल के लिए 40 का स्पीड है और वन एसी के लिए 200 का स्पीड है। ऐसा होता है कभी? यस और नो? No. जब ट्रेन निकलती है उसमें सब कंपार्टमेंट रहते हैं। जब ट्रेन पहुंचती है तो कंपार्टमेंट लेके चलती है ना वो सब कुछ, कि ऐसा नहीं कि अदर बाहर छोड़ दिया किसने। तो हम क्या करते हैं, प्राइस और अफोर्डेबिलिटी मींस जो भी आपकी लग्जरियस है, आपको कितना लग्जरियस चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? प्राइस पे करते हैं। ओके, सो आप देखो, फर्स्ट एसी में कर रहे हो तो फर्स्ट एसी में कितना प्राइस रहेगा? सपोज 5000। सपोज 5000 प्राइस है फर्स्ट एसी का। उसमें आप कंपैरिजन करोगे सेकंड एसी में, तो फर्स्ट एसी में आपको खुद का कंपार्टमेंट मिलेगा। ओके, उसमें दो या तीन या चार बेड रहते हैं, दो ही बेड रहते हैं। ओके, तो आपको एक कंपार्टमेंट मिलेगा फर्स्ट फर्स्ट एसी में। आप कंपार्टमेंट भी ले सकते हैं या फिर जनरल, उसमें भी एक दो चीजें रहती है। एक कंपार्टमेंट रहता है स्पेशल कंपार्टमेंट, या फिर एक अलग से मीन्स ये रहता है। ओके, सो वहाँ का एसी सही रहेगा, क्लीननेस रहेगा, जो भी सीट है सीट्स में थोड़ा मीन्स कंफर्ट रहेगा ज्यादा। ओके, सो जब भी देखो आप कोई जो एमएलए या फिर मिनिस्टर जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तो फर्स्ट एसी में करते हैं। ओके, सो उस टाइप से क्या है उसकी लग्जरी से। सेकंड एसी में क्या मिलेगा? सेकंड एसी में तीन कंपार्टमेंट रहते, तीन और तीन 6 कंपार्टमेंट रहते हैं एक इसमें। ओके,
सो उसकी थोड़ी लग्जरीज कम रहेंगी, एसी का थोड़ा ये रहेगा, सिक्योरिटी थोड़ी कम रहेंगी। ओके, जैसा फर्स्ट एसी में कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में दोनों भी इधर पुलिस का मीन्स पुलिस के एक बंदा रहता है। ओके, गेट के पास, मीन्स नो वन कैन गो इनसाइड दैट फर्स्ट एसी एंड सेकंड एसी। ओके, सो यहाँ पर कंफर्ट कम मिलेगा। थर्ड एसी में अगर इसकी प्राइस 5000 है, सपोज इसकी प्राइस क्या है 5000 है। ओके, एज कंपेयर टू हियर प्राइस इज डिक्रीजेस। ओके, सो इसकी प्राइस क्या रहेंगी 3000 और 4000। ओके, जस्ट टेक अ एग्जांपल। बट थर्ड एसी की प्राइस कितनी रहेंगी 1000। ओके, और स्लीपर की प्राइस कितनी रहेंगी एज कंपेयर टू हियर 500। ओके, और जनरल की कितनी रहेंगी, जनरल की रहेंगी 200। ओके, सो इस प्राइस के डिफरेंस से हमें क्या मिलता है, हमें जो भी अफोर्डेबिलिटी है या फिर लग्जरियस टाइप है, वो किस पर डिपेंड रहेगा, प्राइस पर। ओके, बेस्ड ऑन प्राइस, और बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स यू कैन चूज योर कंपार्टमेंट्स। ओके, सो आपकी सबसे पहले आप क्या देखोगे कि आपके खिस्से में कितने पैसे है। ओके, सो आप जितने पैसे होंगे उतनी आप प्राइस पे करोगे। ओके, उसके बाद में देखोगे आपको कंफर्ट कितना चाहिए। अगर से आपको कितना 100 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है, तो आप फर्स्ट एसी का टिकट निकालोगे क्या, नहीं, तो आप कहाँ जनरल में करोगे। ओके, जनरल में स्लीपर में उसमें ट्रैवल करोगे। अगर से आपको 6 आवर 10 आवर्स 11 आवर्स जर्नी करनी है, तो आप कौन सा कंफर्ट देखोगे, एक तो स्लीपर, आपको सो के जाना है तो स्लीपर। अगर से आपको एसी चाहिए तो फिर थर्ड एसी सेकंड एसी, ये भी आप चूज कर सकते हो। ओके, सो इन S3 ऑल्सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। ओके, सो फ्रंट एंड दैट इज गिविंग S3 बकेट। ओके, तो फ्रंट एंड में हमने देखा था S3 बकेट। जस्ट so when you upload any data, suppose आपकी S3 bucket है, okay, this is your S3 bucket और you can upload here any type of data। okay, you can upload any type of data। so अगर से क्या कर दिया आपने, यहाँ पर डेटा अपलोड कर दिया, दिस इज अवर डेटा। ओके, सो अपलोड कर दिया। so when you upload any data in bucket, so they stored in different locations। तो क्या करते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर वो स्टोर करते हैं। हम तो S3 बकेट में डाल रहे हो, बट वो कौन से न कौन से स्टोरेज में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड अफोर्डेबिलिटी, आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस टाइप से क्या करेंगे, हम क्लास चूज करेंगे। ओके, सो डिफरेंट क्लासेस आर देयर। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट एसी सेकंड एसी। सो लाइक हियर आल्सो सेम थिंग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी सेम थिंग रहेंगी। तो दिस इज द क्लासेस। ओके, तो कौन कौन से क्लासेस है यहाँ पे, सबसे पहले आता है हमारा S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड। सेकंड आता है हमारा S3 इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हियरिंग। थर्ड पार्ट आता है हमारा S3 स्टैंडर्ड AI।
S3 standard IA. Okay. Then S3 one zone. S3 one zone IA. Okay. IA means infrequently access. Okay. और थर्ड आता लास्ट में आता है हमारा ग्लेशियर्स. ओके, ग्लेशियर्स में भी टाइप्स रहते हैं. ओके, S3 ग्लेशियर्स, then S3 glaciers deep. S3 glaciers deep archive. Okay, so S3 standard means, so this is 6 are there. Okay, 6 classes. So first, second, third, fourth. फर्स्ट वाला क्या है हमारा S3 स्टैंडर्ड है. उसके बाद में S3 इंटेलिजेंट एयरिंग, S3 स्टैंडर्ड AI, S3 वन जोन AI, S3 glaciers and deep archive glaciers. Okay, so this is the first storage here, S3 standard. Okay, this is the first storage here. So first storage here price are more, and each every luxurious means all high availability, high durability, 99.9 times 11 times durability, high security, everything. Okay, it's costliest among 6. ओके, एक इसका क्या है, कॉस्ट ज्यादा है. सेकंड क्या पार्ट है हमारा, इंटेलिजेंट एयरिंग. इंटेलिजेंट एयरिंग मींस सेकंड वन इज द कंपैरेटिवली चीपर. इससे क्या रहेगा, कंपैरेटिवली चीपर रहेगा ये. ओके, सो लिटिल बिट चीपर रहेगा. सो यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरेज. ओके, सो ये जो इंटेलिजेंस एयरिंग हम बाद में देखेंगे. सो ये डिटेल में देखना है हमें. ओके, सो बट थिंग इज, then last third one is S3 standard AI. So S3 standard AI means infrequent access. So you have upload data, safety generally. Okay, so safety purpose data stored in multiple locations, easy जो हमारे regions रहते हैं. So automatically copy data from multiple locations from for security regions. In this class, data copied in multiple locations on the same regions. Okay, जो भी हमारा multiple locations है, but कहाँ रहेगा, same region में रहेगा. Okay, जैसे यहाँ पर देखिए, दिस इज द रीजन. ओके, एपी साउथ वन. तो ये क्या रहेगा कि एपी साउथ वन में रहेगा, बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे. ओके, सो मुंबई के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर वो क्या रहेगा, स्टोर करेगा. ओके, so in this one is one region. ओके, सो वन रीजन में रहेगा, और उसके बाद में वो क्या करेगा, मल्टीपल एजी में रह सकता है. व्हेन पुट सम डेटा इन बैकअप. ओके, सो विल टेक अनदर एजी इन द सेम एजी, one more AZ store data in our AZ. Okay, put some data, it will take backup in same S3 bucket. Sorry, same means is availability zone, but not in another availability zone. That's why here durability and availability numbers are common. Okay, तो यहाँ पर आपने अगर से डेटा स्टोर किया स्टैंडर्ड AI में, तो ये क्या करेगा, उसकी क्या बनाएगा, एक बैकअप फाइल बनाएगा. सो उसी अवेलेबिलिटी जोन में वो दूसरे लोकेशंस पर क्या करेगा, वो डेटा सेव करेगा. ओके, अंडरस्टैंड. सॉरी, दिस इज वन जोन AI. स्टैंडर्ड AI मींस दैट अवेलेबिलिटी इसकी 9.11 टाइम्स रहेंगी. ओके, सो वन जोन AI मींस आप जब भी डेटा आप स्टोर करते हो तो उसका क्या बनता है, एक बैकअप बनता है, और वो बैकअप स्टोर करके रखता है अदर लोकेशंस पर, बट सेम अवेलेबिलिटी जोन्स. ओके, S3 ग्लेशियर्स. S3 ग्लेशियर्स का क्या रहेगा, S3 glaciers रहेगा. So in these two place
where you want to immediate availability, and availability means you can upload data, so you cannot get the data immediately, you can not access, you need to wait couple of minutes. So when you upload the data in Glaciers, to get the data need to wait 2 to 5 hours. Okay, so when you upload the S3 Glaciers zip archive, to get data wait for 12 hours. Okay, then देखो, जो हमारे ग्लेशियर्स के है, जितने भी ग्लेशियर्स के हैं, सपोज आपने यहाँ पर डेटा अपलोड किया है। ओके, ग्लेशियर्स में डेटा अपलोड किया है, ये सिंपल हमारा ईस्टर ग्लेशियर्स है। अगर से आपने डेटा यहाँ पर अपलोड किया तो आपको रिट्राइव करने के लिए 2 to 5 आवर्स क्या रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ओके, सेम लाइक एज हियर आल्सो, यहाँ पर तो 24 48 आवर डिपेंड्स अपॉन योर फाइल साइज। ओके, कितने साइज की फाइल है, कितने साइज का फोटो है, तो उस टाइप से क्या रहेगा, वो रिट्राइव करने के लिए टाइम लेगा। ओके, जैसे आप देखो कि आप फेसबुक यूज करते हैं एवरीवन, अगर से आपने 10-12 साल पहले मीन्स यूज किया है, ओके, तो फेसबुक यूज कर रहे हो 10 साल से, और उसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप तब आपने कुछ डेटा वहां पर स्टोर करके रखते हैं, किसी के फोटोज या फिर कॉलेज की कुछ स्कूल की कुछ मेमोरीज फोटोज, सो आपने कैप्चर किए होंगे, वो वहां पर रख दिए आपको। ओके, सो अगर से आपको वो डेटा रिट्राइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर सर्च करना पड़ेगा। ओके, उस नाम से, then that data is available, then you can retrieve that। retrieve means डाउनलोड करना पड़ेगा, तो डाउनलोड के लिए क्या रहेंगे, उसको टाइम लगेगा। ओके, अगर से डीप ग्लेशियर्स में है तो मोर देन 24 आवर्स 48 आवर्स, अगर से आप ग्लेशियर्स में हो तो यू कैन एडजस्ट अप टू हाफ एन मीन्स हाफ एन आवर और 2 to 5 hours। ओके, so this is the difference between S3 and S3 Glaciers and S3 deep archive। Okay, so the second part is intelligent steering। so what is the basic, first of all, which storage choose for data, क्यों चूज करते हैं हम, कौन से दो टाइप से, हमारे प्राइस और रिक्वायरमेंट। ओके, सपोज आई हैव सम डेटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेरे पास डेटा है और दैट डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरीवन नोज दैट एक्सेस दैट डेटा। अगर से मैंने, मुझे क्या चाहिए कि उसको कोई भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है और नो वन कैन एक्सेस दैट डेटा, वो कोई भी एक्सेस नहीं करना चाहिए। ओके, सो आई एम रेडीली टू पे मनी। मैं मीन्स आप क्या कर रहे हो, रेडी भी मीन्स पे करने के लिए आप रेडी भी हो कि अगर से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो वी विल प्रोवाइड, बट नो वन कैन यूज माई डेटा। ओके, आई नीड हाई अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इफ दैट इज द केस, you choose first one। okay, so S3 standard, where you ready to pay good amount of money and all, also you need to all the features, then you will choose first one। okay, S3 standard। okay, when you choose first standard one a, so you need to data, it is very very important but not so important। okay, तो क्या रहेगा, इतना important है but इतना important नहीं है, that's why out of, you know, that not means that not so important, so you will use standard AI। okay, understand, one zone AI means the data is important but not much, so some likes pictures are there, generally don't lose। okay, if you have access one or more pictures, that is fine, does not make much difference in that case, so you will choose S3 one zone AI। okay, so अभी what is the intelligent tiering, what is meant by intelligent tiering? Suppose you have data but you don't know where to keep। आपके पास क्या है, डेटा है। ओके, बहुत सारा डेटा है आपके पास, अभी आपको डेटा, यहाँ इंटेलिजेंट टियरिंग क्या करता है, आपके पास बहुत सारा डेटा है और आपको पता ही नहीं कौन से क्लास में उसको स्टोर करना है। ओके, सो आप देखोगे कि किसकी प्राइस कम है बट आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस होना चाहिए, तो दैट थिंग इज हैपनिंग। सो बेस्ड अपॉन योर मींस your S3 buckets, how frequently accessing data, how frequently putting the data and getting the data, based upon that AWS will choose the storage class। okay, the storage class used for storing purpose। okay, but इसके different different benefits है और drawback भी है।
when you put some data S3 intelligent tearing, अगर से आप डेटा S3 intelligent tearing में पुट कर रहे हो, okay, तो AWS will decide that data should be keep in storage. AWS क्या बोलेगा कि इस S3 bucket में क्या है, डेटा stored है, okay, stored either first one or remaining four, okay. So AWS will decide where to keep the data, okay, here and there. So in backend क्या करता है कि वो यहाँ पर तो डेटा लाके रखता है, इन बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में यहाँ पर एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइडेड which storage class choose to store the data, okay. अगर से उसको स्टैंडर्ड चाहिए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है तो यहाँ पर स्टोर करेगा, अगर से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो आप ग्लेशियर्स में भी डाल सकते हो, ओके. सो बेस्ड ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली पुटिंग गेटिंग सम डेटा, so it will decide to importance of data, okay. You don't know where to keep the data, just keep in S3 bucket, okay, and fact will be decides. So that is the difference. Simple words, standard का क्या रहेगा, ऑल फुल फीचर्स, इसमें क्या रहेंगे, ऑल फुल फीचर्स रहेंगे. इंटेलिजेंट स्टीयरिंग में रहेंगे, यू डोंट नो वेयर टू कीप द डेटा, इंटेलिजेंट स्टीयरिंग डिसाइडेड वेयर टू कीप द डेटा, ये डिसाइड करेगा. खूब बैकएंड में क्या रहता है, ये आ रहता है इसका, ये डिसाइड करेगा कि कौन से स्टोरेज में डेटा पुल करना है उसको. तो पहले देखेगा कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, ओके, देन ही विल पुल दैट डेटा. S3 standard AI, durability and availability little but low as compared to above two S3 bucket classes, okay. S3 one zone है, further durability and availability compared to cheapest, where data backup to be taken in same as the, okay. So then glaciers that data does not immediately access, okay, to wait 2 to 5 hours, okay. S3 glaciers Deeparko, you need to wait for 24, 12 hours or 48 hours, depends upon data size, okay. Understand? Yes, sir. तो अभी देखने वाले हैं लाइफ साइकिल. व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल्स? वी कनेक्ट ऑल द टायरिंग क्लासेस, जो हमने टायरिंग क्लासेस देखे, ओके, दिस आर टायरिंग क्लासेस. सो S3 स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टायरिंग, ये अभी, ओके. अभी क्या हो रहा है, व्हाई वी आर कनेक्टिंग दिस वन, ये देखो ये क्या है, कनेक्टेड है वन बाय वन, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ओके. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर. अभी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग डेटा, कंटिन्यूसली आई एम गेटिंग डेटा. यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है, ओके, कंटिन्यूसली डेटा आ रहा है. Continuously data is very important for first couple of days. That data is important for the first 30 days. अगर से मुझे पता है कि डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर ओनली 30 डेज, 30 डेज के बाद में इस डेटा का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. जैसे आपने देखा होगा अकाउंट में, अकाउंट की जो समरी देखते हो आप, स्टेटमेंट देखते हो, तो ओनली 10 ट्रांजैक्शन दिखते हैं आपको, जो भी रिसेंटली 10 ट्रांजैक्शन हुए हैं वही दिखेंगे आपको, ओके, बिकॉज दैट डेटा इज इम्पोर्टेंट. आफ्टर सेकंड डे दैट डेटा इज इम्पोर्टेंट, सेम डेटा इज इम्पोर्टेंट नहीं, वो पुराना हो गया अभी, ओके, नए ट्रांजैक्शन आ गए, ओके. सो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज. दैट डेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट 30 डेज. 30 डेज के लिए क्या है, डेटा इंपॉर्टेंट है, ओके. आफ्टर 30 डेज importance of data is coming down, data loses reliability relevantly with kind of 2 days, okay. न्यूज़पेपर, एक एग्जांपल देता हूँ, टुडेज न्यूज़पेपर है. टुडेज न्यूज़पेपर इज इम्पोर्टेंट. अगर से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सवेरे जब आएगा तब क्या करोगे, आप पढ़ोगे, ओके. सो टुडे ओनली टिल मॉर्निंग वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके. इफ यू वांट टू टुडे न्यूज़पेपर टुडे इवनिंग, देन द प्राइस विल बी लेस. अगर से आप सवेरे का रात में पेपर ले रहे हो तो क्या करते हैं, प्राइस थोड़ी कम करते हैं, ओके. So data loses relevant importance with the time, correct? Here also, so I am getting data continuously. The data is very important, okay, very important. यहाँ पर 30 days complete हो गए, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, okay. So यहाँ पर भी अगेन 30 days complete हो गए.
30 डेज कंप्लीट हो गए तो डेटा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, सो यहाँ से 30 डेज कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर आएगा। ओके, तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आएगा, और यहाँ से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आएगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। तो इसके लिए क्या लगेगा हमें, 30 डेज 30 डेज 30 डेज 30 डेज कितना होगा, यहाँ पर होगा 60 डेज, दोनों मिला के क्या होगा 60 डेज। करेक्ट, yes or no? 30 plus 30, after 60 days that data moves to another class. Okay, another one, is also 60, then also 60. Okay, तो ऐसा ऐसा क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। ओके, today only till morning, if you want to today newspaper today evening, then the price will be less. Okay, suppose I want to buy yesterday newspaper, they will selling in kilos. Okay, so data loses relevance, so importance with the time. Correct. Okay, here also, so I am getting the data continuously. The data is very important for 30 days only. Any number, just I am giving one example here. The first standard AI is in S3 standard. Okay, after that it's losing some importance of data, automatically should go intelligence artificial या artificial intelligence बोल सकते हो आप। after few days again should go S3 standard AI। okay, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में ऑटोमेटिकली दैट शुड बी ट्रांसफर डेटा वन क्लास टू अनदर। क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो जाएगा, फ्लो होते जाएगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, और यहाँ से यहाँ पर आएगा। ओके, so after 30 days again transfer to S31 zone means inclusion tearing क्या करता है, then glaciers deep archive। okay, so automatically should transfer one class to another class। okay, so can we continue tomorrow? Can we continue tomorrow, yes or no? Yes. 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 Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, anyone have any questions, please ask me. Hello, sir. Yes, Sir, data